eat right as per season, as per region, as per tradition. आयुर्वेद में there is a simple 3 principle दिया है. अगर वो 3 से principle अगर कोई भी follow करे तो उसका हम बोलते हैं lifestyle जो भी आज अगर 72% disease is because of the lifestyle disorder. Diabetes है, blood pressure है, stress है, joint Cancer. pain, अपना ये सारी चीजें is because of the lifestyle. How is that both retirement and well-being are interlinked? In our all earlier episode, right, we talk about the taxation, NRI and these कौन से vehicle use करने चाहिए, health में क्या करना चाहिए, right? This is very different, right? And this is also most important. Everything is equally important, right? 3 principle is हित बुक, मित बुक एंड रित बुक. रित बुक का मतलब है ऋतु के अनुसार, मतलब सीजन के अनुसार आप खाओ. ईट अकॉर्डिंग टू सीजन. सीजन के फ्रूट्स क्या है, वेजिटेबल्स क्या है, बट सीजन स्पाइसेस भी है. Correct. सीजन के अकॉर्डिंग हमारा दिनचर्या रहता है, डेली लाइफ रूटीन रहता है. अभी हम अगर बोलेंगे मेट्रो सिटीज में पीपल से इट इज वेरी डिफिकल्ट. नो, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू फॉलो द दिनचर्या एंड फॉलो द आयुर्वेद और फॉलो एज पर द सीजन. सेकंड है मित भूख. तो भूख मतलब कि 2 निवाले कम खाओ. हमारी दादी नानी भी बताती है पेट भर के मत खाओ. पूरी प्रकृति हमारी सृष्टि बनी है पंच महाभूत से, जल अग्नि वायु पृथ्वी. हाँ, तो पंच महाभूत से बना है. हमारा फूड पंच महाभूत से बना है और हमारा बॉडी भी पंच महाभूत से बना है. तो गॉड बताता ही है कि भैया सृष्टि में चेंज है, सीजन में चेंज है, अकॉर्डिंग टू फूड में चेंज है, अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी में चेंज है. इन 1947 when we got the independence, इंडियन पॉपुलेशन 30 करोड़ था और इंडियन काव, अपना देसी काव का पॉपुलेशन था 90 करोड़ और आज हमारा पॉपुलेशन है 140 करोड़ और गाय किधर है हमारी? Surprising, this was 9 करोड़. आई थिंक सो लेसर देन दैट ऑल्सो. तो मतलब वो हमारा जो काव सेंट्रिक. और अगर गाय की अगर आप बात करो, गाय के सिंग से लेके उसके पाँव की खरी तक ईच एंड एवरी पार्ट इज हेल्पफुल. इसलिए गाय को कामधेनु बोला है. Very good morning. What a wonderful morning. Thank you. We have a Yes. health is the greatest gift. There is no doubt of it. And greatest contentment is the greatest wealth. Now, there you may have 1,000 crores, you may have 100 crores, or you may have 1 rupee, but if you don't have health, there's nothing in this world. So, from ancestors, everybody say, well, first have a good health, then you can do a lot of things. To continue our attempt to revolutionize and give a great message to audience that retirement is the thing in the future. But for that, yesterday we have discussed about health insurance impact, we have discussed about financial planning, we have discussed about taxation, we have discussed about NRIs. But today what we are going to do is the most important topic in this beautiful farmhouse is about health. And there is no better person than Archana ji to speak about this. And Girish bhai, thank you for getting her in. She's let me introduce Archana ji. Archana ji is has had done PGDBM from Narsi Monzi. She has worked in little and corporate. Then she has come out and she's a financial planner. Now she heads she's started KK Financial Services. She's also partner in KK Reality, mother of 2 beautiful children, successful children, and of course the husband is also working working and supporting her. And she has turned her life from a financial planner now to a CEO of a great startup company which works on Ayurvedic products. She will speak about it more in her conversation. But thank you, Archana ji. I think the next 1 hour is going to give a lot of wisdom to people and change their way of life. Includes me. So I also have to learn a lot of things when whatever little conversation we had yesterday and today. I also thought that a lot of changes I need to build it. So all over, I think the man behind our conversation is Mr. Girish Patel, and yes. you can speak about how you got introduced and how is your journey with Girish ji. Girish ji, yes. Thank you, Niranjan. Namaste, Girish bhai. Namaste, namaste. See, my journey from finance to wellness, it's not by accident. Actually, when I was, from 2 decades, I was explaining everyone about the financial planning and creating their wealth. I realized that they are losing something. Yeah. And the main is the health. Yes.
And to think about this, I must say, and I must give her name as my mother-in-law, Krishnabin Patel, who encouraged me, and her wisdom has promoted me to go into the wellness industry. तो निरंजन क्या है कि बहुत सारे ऐसे सवाल लोगों के मन में होते हैं कि फाइनेंस तो हमने सही कर लिया और है, अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि फाइनेंस हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिससे हम बेटर Absolutely. प्लान कर सकते हैं, बट फॉर हेल्थ इज Yeah. ऑल्सो प्लानिंग रिक्वायर्ड. तो हेल्थ के प्लानिंग के लिए आई थिंक सो आई हैव स्टार्टेड माई ओन कंपनी कियासा वेलबींग प्राइवेट लिमिटेड. Under that, we have a beautiful brand name is Roots and Origin. And under Roots and Origin, we are trying to give you and solve your day-to-day lifestyle issues or day-to-day lifestyle जो भी आपको lifestyle की वजह से disease होती है या problems होते हैं उसको solve करने की कोशिश करते हैं. तो this is about my small startup. So, Archana ji, what are the basic foundations of well-being or a healthy living? We'll go deep into what are the challenges people are having, right from a child, right from an adult who just started, and for 45 to 50. Where is it going wrong? There's definitely, we are the diabetes capital of the Yes. world. Then what we do is let's take one by one. Okay. तो सबसे पहले क्या करना है? Correct. तो you are what you eat. Absolutely. राइट. सो सबसे पहले हमें, हमारे गुजराती में कहावत है, पहलू सुख ते जाते नरिया. अगर आपका तन अच्छा है, आप हेल्दी हो, दैट इज़ योर फर्स्ट हैप्पीनेस. Absolutely. तो हेल्दी, अगर बॉडी को हेल्दी रखना है तो क्या करना है? सो ईट राइट, ईट एज पर सीजन, एज पर रीजन, एज पर ट्रेडिशन. तो अगर आयुर्वेद की मैं बात करूँ तो आयुर्वेद में देयर इज़ अ सिंपल 3 प्रिंसिपल दिया है. अगर वो 3 से प्रिंसिपल अगर कोई भी फॉलो करे तो उसका, हम बोलते हैं लाइफस्टाइल, जो भी लाइफस्टाइल, आज अगर 72% डिजीज इज़ बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डेथ इज़ बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर. डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रेस है, जॉइंट Cancer. पेन, अपना, ये सारी चीज़ें इज़ बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल. वो कोई कीटाणु या जीवाणु से नहीं आ रहा है, बैक्टीरिया से नहीं आ रहा है. तो वी हैव टू करेक्ट अवर लाइफस्टाइल. तो क्या है, व्हाट इज द 3 सिंपल प्रिंसिपल विच आई कैन फॉलो एंड आई कैन बी अ फिट एंड फाइन? इज द 3 प्रिंसिपल इज हित बुक, Okay. मित बुक Okay. एंड रित बुक. रित बुक का मतलब है ऋतु के अनुसार, मतलब सीजन के अनुसार आप खाओ. ईट अकॉर्डिंग टू सीजन. Season. Yeah. अगर अपने सीजनल फूड, हम सबको मालूम है सीजन के फ्रूट्स क्या है, वेजिटेबल्स क्या है, बट सीजन स्पाइसेस भी है. Correct. ओके, सीज़न के अकॉर्डिंग हमारा दिनचर्या रहता है, डेली लाइफ रूटीन रहता है. अभी हम अगर बोलेंगे मेट्रो सिटीज़ में पीपल से इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, नो इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट टू फॉलो द दिनचर्या एंड फॉलो द आयुर्वेद और फॉलो एज पर द सीज़न. क्योंकि हमें क्या है, मार्केट में एवरीथिंग वी आर गेटिंग Yeah. 365 डेज. ठीक है. अभी जैसे वाटरमेलन की बात करें तो टुडे ओनली आई सॉ इन ऑन ब्रेकफास्ट टेबल वाटरमेलन. Correct. तो वाटरमेलन अभी के ज़्यादा सीजन में ना. नहीं खाया Absolutely. जाता है. वाटरमेलन, याद रखो कि वाटरमेलन इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ईट आफ्टर रामनवमी. Okay. ओके, जूसी फ्रूट है. गर्मी में जब भी हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है तभी हमें वाटरी फ्रूट्स मिलते हैं. तो ये हमें देखना है कि कौन सा फ्रूट कभी खाना चाहिए. Custard apple. Yeah. तो दिस आर द थिंग्स जो अगर हम करें तो भी हम काफ़ी हद तक अपने लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से बच पाएंगे. सेकंड है मित भूख. Okay. मित भूख मतलब कि 2 निवाले कम खाओ. हमारी दादी नानी भी बताती है, पेट भर के मत खाओ, हाँ. थोड़े 2 निवाले कम खाओ. मिक्सचर में अगर फूरा भरा है ना तो वो ग्राइंड नहीं होगा, उसको I know. थोड़ा खाली रखेंगे तो वो अच्छे से ग्राइंड There's a होगा. gap. और यहाँ पे एक और चीज़ मैं निरंजन बताना चाहूँगी कि यूजुअली ना हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, पानी खाने के बीच में नहीं पीना हाँ. चाहिए, पानी इतना पीना चाहिए. आई जस्ट टच ओनली अबाउट खाने के बीच में पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए. एक सिंपल है, आपने कभी यज्ञ किया है या कभी पूजा की है तो आप हमेशा भगवान को भोग लगाते हो, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, और इसमें क्या बोलते हो, मध्य मध्य पानी अनु Yes. समर्पित. तो बीच बीच में भगवान को 3 निवाला खिला के पानी पिलाते हो. तो आप क्यों पानी नहीं पीते हो? Absolutely. सो यू हैव टू ड्रिंक अ गुड वाटर, Correct. नॉट दी फुल ग्लास ऑफ वाटर, बट थोड़ा सा पानी. अगर वो पानी लुकवॉर्म पीते हो तो नथिंग लाइक इट, और अगर वो पानी स्पाइस इन्फ्यूज पीते हो तो भी इट इज़ वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन. Correct. तो ये है मित भूख, कि अपनी मित मतलब थोड़ी, जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ. और एक है हित भूख. हित मतलब आपको हितकारी हो. हर एक पर्सन बॉर्न विद देयर प्रकृति.
एब्सोल्युटली कफ पित्त एंड वायु एक फिक्स प्रकृति है, तो हर एक पर्सन को, किसी को दही सूट नहीं करता है, किसी को बनाना सूट नहीं करता है, और किसी का प्रकृति ऐसा है कि ये सीजन में अगर दही खा लिया तो कफ हो जाता है, तो दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर देयर प्रकृति, बॉडी हाँ, एंड देन बॉडी कंपोजिशन, एंड एज पर दैट दे हैव टू ईट. दिस इज अ हितभुक, हितकारी, अपने बॉडी को हितकारी है वैसा खाओ. सो दिस आर द 3 कॉमन प्रिंसिपल. अगर आप वो फूड आइटम के लिए अगर आप खाते हो तो बहुत सारे फूड रिलेटेड आपको जो प्रॉब्लम्स होते हैं इंडाइजेशन, अगर सारी बीमारी का पेट का जड़ है पेट, सारी gut. बीमारी का जड़ है पेट, अगर डाइजेशन सही है तो ऑलमोस्ट आप सॉर्टेड हो, करेक्ट राइट. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं होगी. आज आई विल जस्ट टेक वन पॉइंट हियर कि यूजुअली विटामिन के और मिनरल्स के कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में नहीं है. आयुर्वेद क्या बोलता है कि आप जो भी खाते हो, अगर आपने अच्छा खाया है तो उसका न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिलता है, एंड यू डोंट हैव टू मतलब टेक द मल्टीविटामिन टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है जो भी आप खाते हो. करेक्ट अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है उसका मतलब ये है योर गट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वो एब्जॉर्ब नहीं हो नहीं रहा हो है. रहा है तो आप अगर मल्टीविटामिन भी ले रहे हो तो एब्जॉर्ब होगी. yes. अगर पेट में वो हाँ, भी फूड है जो एब्जॉर्ब नहीं absolutely. हो रहा है तो नहीं, मल्टीविटामिन भी लेते नहीं होगी. सब्स्टिट्यूट तो फिर आपको काम कहाँ करना है? रूट कॉज इज योर गट. एब्सोल्युटली गट तो यू हैव टू वर्क ऑन इट. अगर उसको सही किया तो आपके सारे न्यूट्रिशंस, आपको सब कुछ बैलेंस मिलता रहेगा आपके फूड में से. तो नो नीड टू टेक दी अनदर मेडिकल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी. सो दिस आर द बेसिक थिंग फॉर टू नॉर्मली, चाहे आप मेट्रो में हो, गांव में हो, चाहे वेरेवर विचेवर पार्ट यू आर लिविंग, दिस कॉमन प्रिंसिपल इफ यू विल फॉलो. पूरी प्रकृति, हमारी सृष्टि बनी है पंच महाभूत से, जल अग्नि वायु पृथ्वी. हाँ, तो पंच महाभूत से बना है हमारा फूड, पंच महाभूत से बना है, और हमारा बॉडी भी पंच महाभूत से बना है. तो गॉड बताता ही है कि भैया सृष्टि में चेंज है, सीजन में चेंज है, अकॉर्डिंग टू फूड में चेंज है, अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी में चेंज है. तो ईट एज पर दैट, अकॉर्डिंग टू उससे जाओगे. जैसे कि मैंने बताया आपको रीजन के अनुसार भी खाना चाहिए. जैसे कि देयर इज अ रीजन, अगर इंडिया की भी बात South करें, India. हाँ, तो साउथ Rice इंडिया India में का है. कोकोनट ऑयल है, नॉर्थ इंडिया में सरसों का है. some तो mustard oil, वाई yes. वाई दिस इज डिफरेंस? बिकॉज वहाँ पे उसकी ज़रूरत है, अगर साउथ में उसकी ज़रूरत. तो ईट अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू रीजन, कि कौन से रीजन में आप हो. जैसे कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, तो यू हैव टू फील करना है कि दिस इज़ अ मानसून, और उस हिसाब से आपको खाना है. बट आप जैसे अभी हम गुजरात में हैं, गुजरात में ठंडी है, बट मैं मुंबई से आई तो मुंबई में ठंडी नहीं थी, तो आई हैव टू डू अ प्रोटोकॉल एज पर विंटर सीजन. यस तो एज पर द रीजन भी आपको खाना चाहिए. तो अगर थोड़ा स्टडी करोगे, थोड़ा आप इंफॉर्मेशन लोगे, तो 72% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे. where is that it is we need to improve on a day to day basis, that you start a day or you eat this much of meal, or what are the things which need to be compulsory to be there in a day so that they will be fit and fine on that day. Archana ji. सी पर्टिकुलरली ऐसा कोई, आज अगर हम डाइट की भी बात करें, कोई डाइटिशियंस हैं, तो डाइटिशियन जो है, आई सजेस्ट एवरी वन टू गो फॉर अ ऑथेंटिक डाइटिशियन. डाइटिशियन का भी कोर्स इज़ अ 5 years कोर्स, नॉट ओनली 1 year 2 year के क्रैश कोर्स से आप डाइटिशियन नहीं बन जाते हो. बट आपने अगर डाइटिशियन, प्रॉपर डाइटिशियन के पास जाओगे तो दे विल स्टडी कंप्लीट योर प्रकृति ऑल्सो, दे विल स्टडी कंप्लीट योर दिनचर्या, आपका ऑफिस जाने का टाइम, आपका घर पे रहने का टाइम, और अकॉर्डिंग टू दैट दे विल सजेस्ट द डाइट. तो आज अगर मैं कोई टिप्स बोलूँ, फ्रूट खाना, वो तो आपको मालूम है, आपको फ्रूट खाना चाहिए. ये सीजन है, विंटर इज फुल ऑफ लिफी वेजिटेबल. अभी आपको मैं बताऊं, लिफी वेजिटेबल पचने में लाइट होंगे कि हार्ड होंगे, हैवी होंगे? लाइट होंगे. नहीं, इट इज अच्छा. वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इसलिए विंटर में खाते हैं. अच्छा, क्योंकि विंटर सरसों का में, साग, हाँ, हाँ. विंटर में डाइजेस्टिव फायर इज वेरी हाई. तो आपका जो भी हैवी फूड है उसको आप इजीली, हमें ऐसा लगता है लीफी वेजिटेबल इज वेरी लाइट, आप कभी भी खा सकते हो. नहीं, उसको कभी नहीं खा सकते हो. तो आपको इसको विंटर में खाना है, ये सीजन में, ताकि आपका डाइजेस्टिव फायर. तो इट इज़ एक कॉमन टिप्स में नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ, जैसे कि अगर आपको बताया, जैसे कि फ्रूट्स है, या सीजन के अकॉर्डिंग आप कोई भी ग्रेन सिलेक्ट, मल्टी ग्रेन मत खाइए प्लीज़. मल्टी ग्रेन आपके लीवर को ज़्यादा स्ट्रेस देता है, क्योंकि बहुत सारे हैं. जैसे कि अगर आपने जवार, बाजरी, गेहूँ सब इकट्ठा किया, तो जवार ड्राई है, गेहूँ स्निग्ध है, जवार ठंडा है, बाजरी गर्म है, तो ये सब कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टमक को पचाने के लिए. तो सब मिला दिया, तो मेरे लगा सब मिला दिया तो मेरे को जो एक ही बार मिल जाएगा अंदर. There is a fashion. People are
Multigrain. Mixing everything and multigrain, so that's a fashion. हाँ वो फैशन ही है एक्चुअली, बट वो नहीं खाना चाहिए. दूसरा ये है कि आप आज अगर समझो जवार खाए, आपको मन है कि मैं जवार खाओ, रोटी, हाँ. वो ग्रेन भी आप अकॉर्डिंग टू सीजन सिलेक्ट करो. जैसे बाजरी गर्म है तो ये सीजन में आप बाजरा खा सकते हो, तो दैट वे यू सिलेक्ट द ग्रेन. आज अगर मैंने बाजरा खाया तो आप बाजरा खाइए, कल गेहूं खाइए, बट आज ही एक ही टाइम में बाजरा, गेहूं, जवार, रागी सब मिक्स मत कीजिए. तो दिस आर द कॉमन टिप्स, बट वी कैंट गिव अ कस्टमाइज डाइट Absolutely. प्लान और अ जेनरिक डाइट प्लान टू एवरीवन. So that in a day you can plan your day with a lot of people. सुबह उठते लेमन वाटर पीते, गर्म पानी पियो. रात में अभी मल्लिका शेरावत ने ये मल्लिका अरोड़ा ने बोलिया कि 5 शॉट है, उसमें ये डालो, जीरा डालो, वो डालो. So people tend to follow what they see on Insta and they start following it. So is it a right way of approach? Because there is a book which your mother told, there's a book your grandmother told, they have been following. So what according to you is the changes that a person needs to get in them to be happy on the 90th birthday or to be happy on the retirement? निरंजन. So पहले तो कंफ्यूज होना बंद करो. हाँ, एक राइट. राइट, सो ओवर इंफॉर्मेशन एंड दी जो भी आदमी अभी क्या है, दैट्स अ फैशन. कोई भी आदमी खड़ा होता है, इंस्टा में बोलता है, उधर बोलता है, वेदर ही और शी इज क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई, राइट. Yeah. तो थोड़ा हमें भी कॉन्शियस रहना है. ऐसा नहीं कि इमीडिएट कोई चीज़ हमको, अगर आपने कुछ सुना है अच्छा. निरंजन, इसीलिए मैंने ये रूट्स एंड ओरिजिन ब्रांड चालू किया है, बिकॉज उसके लिए मैंने 2-3 साल से मैं स्टडी कर रही हूँ, एंड लकीली आई गॉट द एडमिशन फॉर द MPhil, yes. I was coming to that. Yeah. डूइंग Spices में. स्पाइसेस, इंडियन Yeah. स्पाइसेस, मेडिसिनल क्वालिटी ऑफ इंडियन स्पाइसेस, उसके ऊपर कर रहे हैं. तो जैसे कि आपने अभी बताया कि जीरा का पानी या शॉट पीना या जो भी है, तो अगेन इट इज़ अ फैशन. Yeah. आयुर्वेद में क्या लिखा है, स्पाइस इन्फ्यूज पानी पीना चाहिए, बट स्पाइस इन्फ्यूज पानी कितना पीना चाहिए? मॉर्निंग में 1 ग्लास 1 कप पी लिया, इट इज़ सफिशिएंट? नो, इट इज़ नॉट सफिशिएंट. आपको थ्रू आउट द डे सिप वाटर पीना चाहिए. दैट इज़ वाई इन रूट्स एंड ओरिजिन वी हैव अ प्रोडक्ट जीरा वाटर, बट इट इज़ नॉट अ कप, इट इज़ अ 1 liter ऑफ वाटर. Oh. तो दैट 1 liter ऑफ वाटर यू कैन सिप थ्रू आउट द डे. सो Okay. अगर आपने पानी सिप पीते हो तो आपकी बॉडी में उसको इफेक्ट मिलता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो लगता है. अगर आप आज बोलते हो सुबह मैंने 4 ग्लास पानी पी लिया, या तो वो आपकी बॉडी को जितना ज़रूरत है मिलता है, बाकी यूरिन के वाइट से निकल जाता है. तो आपको अगर सिप पीते हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादा और बेटर इफेक्ट उसका मिलेगा. So that लोग सुबह उठते हैं, मैं तो 2 लीटर पानी डक पी लिया. So उससे कोई फर्क पड़ता है? अगर समझो हाँ. कि आज मेरी हाइट 5.8 है, हाँ. ठीक है, मैं सुबह उठ के 4 ग्लास पानी पीती हूँ. हमने जया को देखा, जया इज 5 feet ओनली, तो जया को भी क्या 4 ग्लास पानी पीना चाहिए? सो आयुर्वेद में बहुत ब्यूटीफुली कस्टमाइज मेजरमेंट दिए गए हैं कि कितना पानी पीना चाहिए. उष्ण पान लिखा है, गर्म पानी सुबह उठ के पियो, इट इज़ वेरी गुड Yes, फॉर योर yeah, हेल्थ, yeah. बट कितना पानी पीना चाहिए? तो हर एक आदमी को अपनी 8 अंजलि जितना पानी पीना चाहिए. So it is अभी मेरी अंजलि मेरे लिए राइट है, आपकी अंजलि आपके लिए राइट है, Correct. जया की अंजलि जया के लिए, छोटी. गिरीश भाई की अंजलि, तो सबके लिए कस्टमाइज हो गया ना. तो आप 8 अंजलि से देख लो घर में कितना पानी होता है, रोज सुबह पियो उतने ग्लास पानी. So this kind of a customized measurement So is we given have- in Ayurveda. So don't follow 4 ग्लास, 2.5 लीटर, 3 लीटर, no. गिरीश भाई, मैंने ये जो नॉलेज इकट्ठा किया है वो सारे बहुत सारी बुक्स है, उसका कंपाइलेशन करके मैंने खुद की नोट्स. And also Archana ji, we will talk about now about role of physical activities. So I'm a wrong person to talk about it because I don't do much. कभी मन आ गया तो walking हो जाता है, वो अलग है. But how important it is to for that physical activities in a day-to basis, and what does Ayurveda give signal and say that? फिजिकल एक्टिविटी के लिए 1 घंटा तो चलना चाहिए ना, 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, हाँ. है ना? ये हाँ. सब तो हमने सुना है. सुना है. बट व्हाट आयुर्वेद सेज, जब भी आपको फोरहेड पे, अंडर आर्म्स में पसीना आने लगे, जब भी आपका गला सूखने लगे, स्टॉप डूइंग एक्सरसाइज. Oh. दिस इज अ कस्टमाइज मेजरमेंट गिवन इन आयुर्वेद. अभी आज मैं बोलूँ तो मुझे पसीना टाइम लगता है आने में, मैं हस्बैंड को जल्दी आ जाता है, उसको कम एक्सरसाइज करनी है, मुझे ज़्यादा करनी है. देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, मुझे ज़्यादा करनी है, उसको कम करनी है. सेकेंडली, ठंडी में पसीना आने में टाइम लगता है, गर्मी में जल्दी आता है. तो ठंडी में ज़्यादा एक्सरसाइज करो, गर्मी में कम एक्सरसाइज करो. कभी कभी एक्सरसाइज करते करते मुंह सूखने लगता है बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर, Yeah. तो तभी कम करो.
जब भी एटमॉस्फेयर परमिट करता है आपको तो ज़्यादा करो. तो वेरी सिंपल एक्सरसाइज रूल है, उसका कोई थंब रूल नहीं है कि मेरे को 1 घंटा करना है, 45 मिनट्स कार्डियो करना है, इतना 2 मिनट घंटा मुझे जिम हाँ ये करना है, वो कोई ऐसा रूल नहीं है. आपकी बॉडी को आज यू सी देयर आर मेनी केसेस वी नो, वेनी सेलिब्रिटी केसेस वी नो कि जिनका कार्डियक अरेस्ट हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जिम में करते करते. किसी स्पोर्ट्स प्लेयर है जो खेलते खेलते, बिकॉज क्या है वो ओवर स्ट्रेस्ड है, तो हमें वो भी नहीं करना है. So you're not doing exercise happily. नॉट हैप्पीली, बहुत नहीं, खुशी होके करते जिम हैं हम वो क्यों लोग. करते हैं? Hmm. फिजिकल फिट रहने के लिए. हाँ. ऐसा ओवर करके फिटनेस बिगाड़ने का तो कोई मतलब ही मतलब नहीं ही नहीं है, है. राइट? सो ये एक ब्यूटीफुल कस्टमाइजेशन है, तो हमें सिर्फ वो फॉलो करना है. Correct. अगर आप थोड़ा भी सोचोगे ना कि मैंने कितना किया, तो यू विल गेट दी आइडिया कि हाँ यार मैं आराम से आज तो 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर क्या, पाया. हाँ. क्यों 1.5 घंटा कर पाया? बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर, बिकॉज ऑफ द सीजन, बिकॉज ऑफ योर बॉडी स्ट्रेंथ, फैट कंपोजिशन कितना है बॉडी में, ये सारे पैरामीटर्स से आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है. Absolutely. सिग्नल कौन सा देखना है वो मैंने बता दिया. पसीना पसीना आना चाहिए फॉरहेड अंडर आर्म्स में, या और गला सूख रहा है. दिस आर द 2 सिम्टम्स. अगर आप ध्यान रखते हो तो यू आर सॉर्टेड फॉर द एक्सरसाइज. जैसे आयुर्वेद को हमने आयुर्वेदा बना दिया, वैसे योग को हमने योगा बना दिया. तो आज मैं बोलती हूँ कि अगर हम आज भी अपना जो लोकायुर्वेद है, विच इज़ लोकायुर्वेद इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. मतलब जैसे लोकगीत है, लोक संगीत है, विच इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसी तरह से लोक आयुर्वेद विच इज़ ट्रांसफरिंग वर्बली जनरेशन टू जनरेशन, जो घूम रहा है. आप बोल रहे हो दादी नानी के नुस्खे. आई हैव टेकन इंटरव्यू इन ड्यूरिंग द एग्जीबिशन. जितने भी एल्डरली पर्सन है उनको पूछा कि आपके कोई एक नुस्खा बताओ, हेडेक का, सर्दी का, जो भी आपके पास है नुस्खा बताओ. सरप्राइजिंगली 10 में से 1 दादी के पास नुस्खा था, बाकी किसी के पास नहीं था. इवन आज की डेट में दादी भी पोते को बोलती है हेडेक है मेरे को दवा दे. No, nowadays it's I mean trending in Insta. Put a salt in warm water and put your hand. वो भी they are selling. नानी's नुस्खा. So that's a kind of you just put salt, little salt in it. पानी में पानी में पाओ. bao, it will give an immediate relief. This is the best we can say कि how our kitchen remedies and about the Indian spices. European people, मतलब Columbus was searching India for Indian spices. हाँ. तो उनके खाने में तो आज भी सॉल्ट और पेपर ही है. हाँ, तो स्पाइसेस क्यों ढूंढ रहे थे? बिकॉज दे वर मेकिंग स्पाइस, मतलब स्पाइसेस में से मेडिसिन बना रहे थे. हर्ब्स. या तो आज भी आपको उसकी तो बहुत लंबी स्टोरी है कि कैसे वो आए, क्या हुआ और क्यों स्पाइसेस, कौन सी बुक है उसके ऊपर, और इंडियन का स्पाइसेस का रानी कौन है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आप किसी को भी इंटरेस्ट है तो आई विल शेयर अनदर पॉडकास्ट, वी विल डू ऑन द इंडियन स्पाइसेस. बट वी हैव टू रिवाइव दैट साइंस, एंड उसीलिए हमने रूट्स एंड ओरिजिन जो ब्रांड चालू की है, टू रिवाइव एटलीस्ट जो हम भूल रहे हैं उसको हम पकड़ के रखें, तो ना कि वेस्टर्न कंट्री उसको एंडोर्स करे और फिर हम उसको. Yeah, you were talking about in the morning while we are driving down here. You're talking about New Zealand and other places where our cows are going there. Yes. So where is our this morning? When in a बचपन में रहते थे, एक गिलास दूध पियो, इतना बड़ा दूध पियो बोलते थे. अभी now that culture is gone. Really, निरंजन, दूध की बात हो या घी की बात हो, आयुर्वेद में जहाँ पे भी दूध और घी लिखा है, इट इज़ ओनली इंडियन देसी गाय का दूध और घी. So only देसी गाय आई मीन देसी गाय. आज आपको मैं बताऊं, मैंने फ़ोटोज़ लिए हुए हैं मंदिर के बाहर, हवेली के बाहर, शंकर मंदिर के बाहर. हम गाय को चारा खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं. हमको ऐसा लगता है कि हमने गाय को खिलाया, गाय का ओरा हमें टच हुआ. बहुत सारे साइंटिफिक रीज़न है, लोग करते भी हैं, बट दे आर नॉट गाय. वो गाय के जैसे दिखने वाला प्राणी है, बट वो गाय नहीं है. तो इंडियन देसी गाय कैसी दिखती है? I feel I will share a picture with you, just share in this podcast, कि जो गाय बंधी हुई है वो जर्सी है, वो A1 है, उसके हमें कोई बेनिफिट नहीं है, वो हमारी बॉडी को हार्म करता है. आप जो बोलते हो एक गिलास दूध पीना, वो देसी गाय का दूध पीना है हमें. और जैसे वो गाय चरती है, उसका सूर्य नाड़ी है गाय में, और वो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है, और जिसकी वजह से हमें A2 मिल्क मिलता है, विच इज़ अ मेडिसिनल क्वालिटी मिल्क. तो वो उसके लिए गाय को 11 किलोमीटर चलना है, नहीं कि फार्म में है या राइट कि काउ शेड में बंधी हुई है एंड वी आर फीडिंग द काउ एंड दैट मिल्क अगेन A2 milk, but that is not a medicinal quality milk. But when the guy roam around for 11 kilometers in a sunlight, graze as per
her requirement, and then the which milk they produce in the evening, that milk will be the medicinal quality milk. Oh, that is So something. this is a very different science जो मैंने आपको बताया And कि also a very interesting data she shared. When independence has come, the population, you should share that story. yeah, in 1947 when we got the independence, Indian population 30 करोड़ था, और इंडियन काव, अपना देसी काव का पॉपुलेशन था 90 करोड़, और आज हमारा पॉपुलेशन है 140 करोड़, और गाय किधर है हमारी? Surprising, this was 9 करोड़. आई थिंक सो लेसर देन दैट ऑल्सो. तो मतलब वो हमारा जो काउ सेंट्रिक, और अगर गाय की अगर आप बात करो, गाय के सिंग से लेके उसके पाँव की खरी तक, ईच एंड एवरी पार्ट इज हेल्पफुल. इसलिए गाय को कामधेनु बोला है, Yeah. राइट कि उसका हर एक, गाय के ऊपर तो आप मुझे बोलो मैं 5 घंटा बोल सकती हूँ कि गाय की लार से क्या फ़ायदा है, गाय के बाल से क्या फ़ायदा है, गाय का दूध और घी तो है ही, गोमय और गौमूत्र का भी हमें मालूम है मेडिसिनल Absolutely, क्या क्या है, yes. कैंसर जैसी बीमारी हमारी उससे ठीक हो सकती है. तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स है, बट हम है जो गाय के प्रति हमने जागरूकता ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है ये गाय नहीं है, और हम उसको चारा खिला रहे हैं. सैडेस्ट पार्ट, हवेली और मंदिर के बाहर भी गाय नहीं है. Yeah, you're right, absolutely. So that is a bigger subject, that why I took the milk is that because when you shared it with me, it was very surprising. सरप्राइजिंग. I think we should communicate. Again, coming back to first thing you said, that the how to live a Yes. healthy living, then physical activities. You have to, jitna exercise karna hai, your body will give a signal, and also body will also give you a signal what to eat, what not to eat. What not Prakriti deta hai. Yes. So that is the first thing. And the third part, which is very important today in today's life, we will touch upon relationships, we'll touch upon the emotion, and emotional well-being is very important. For a retirement, emotional well-being is very very important. I can explain this with the example also. Please. But आयुर्वेद का पॉइंट पहले देख Yeah, लें. yeah, आयुर्वेद में क्या बोले? तन को सुख चाहिए, yeah. मन को आनंद चाहिए, और आत्मा को सच्चिदानंद चाहिए. तो तन को सुख में कैसे रखना है वो मैंने आपको बता दिया. Correct. मन को आनंद में कैसे रखोगे? बाय फॉलोइंग योर हॉबीज. Yes. मुझे फ्रेंड्स के साथ घूमना अच्छा लगता है, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे शॉपिंग पसंद है, या मुझे म्यूज़िक पसंद है, मुझे स्विमिंग, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी पसंद है. जो आपको पसंद है, किसी को कोई गिटार बजाना पसंद है, जो आपको पसंद है आप वो कीजिए. तो दिस इज़ यू आर फॉलोइंग योर हॉबीज़. आपका मन खुश रहेगा. मन खुश रहा तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सॉर्टेड हो जाती है, बराबर. तो दिस इज़ लाइक कि अगर आपने मन के, आपका कोई इंटरेस्ट है जिसको आपको हॉबीज़ है, उसको आपको डेवलप करना है, उसको आपको बोलते हैं ना सींचना है. जैसे कि मुझे म्यूज़िक पसंद है, तो मुझे कौन सा म्यूज़िक पसंद है, मुझे सुनना पसंद है, तो एटलीस्ट आप सुनो. दिन में अगर 10 मिनट भी आपने वो अपना म्यूजिक Music पसंद सुन लिया. सुना, तो यू विल बी आउट ऑफ स्ट्रेस. और ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर द रिटायरमेंट, बट इट इज़ फॉर अ यंगर Yes. जनरेशन ऑल्सो, कि अगर वो लोग प्लान कर रहे हैं कि मुझे हेल्दी लाइफ जीनी है. मैं यहाँ पे एक चीज़ पूछूंगी कि आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम गिरीश भाई, यू ऑल्सो, कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, Absolutely. Yes. नंबर ऑफ मेडिकल स्टोर्स बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं. रिसर्च इन मेडिसिन बढ़ रही है, और ये सब फाइट किसके अगेंस्ट करते हैं? बीमारी के against. बीमारी के तो बीमारी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है. बढ़ रही है. तो ये क्यों ऐसा है? कहीं तो हम गलत जा रहे हैं, Absolutely. राइट. अगर हम इतना सारा सब कुछ वो बीमारी के लिए कर रहे हैं, तो वो तो कम होनी चाहिए, तो वो भी बढ़ रही है उसके साथ में. तो समवेयर वी आर डूइंग रॉन्ग, समथिंग वी आर मिसिंग. तो वी जस्ट हैव टू करेक्ट फूड पार्ट, मन का पार्ट और आत्मा का पार्ट. मतलब स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो अगेन अ पार्ट. Yes. એટલે आपका तन खुश रहा, आपका मन खुश है, और आपकी आत्मा के लिए क्या करना है. व्हेनेवर यू विल फील कि आपको इनर से खुशी कभी मिली, तो व्हेन यू विल शेयर कि यार मैंने उसके लिए कुछ इतना किया, वो आंटी गिर गए थे, मैंने उसको उठा दिया, तो मैं बहुत अंदर से मेरे को फील अच्छा फील हो रहा था. People say that start your day with gratitude. Prayer करो. यस, yeah, ग्रेटिट्यूड है. प्लस दूसरा सोशल एक्टिविटी, एंगेज योर सेल्फ विथ वन काइंड ऑफ अ सोशल एक्टिविटी. Very चाहे वो important. कुछ भी हो, पैसा देना नहीं है, यू स्पेंड योर 1 hour, you give your talent, you share your knowledge, anything the way you want. You can, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, just teach 10 English, children इंग्लिश, या मैथ्स अच्छा है वो कराओ. कुछ भी, there are so many things. ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे दे के ही हम कुछ So सोशल वर्क you कर are also सकते हैं. sharing one group doing a music karaoke. Yes, they are very good in Mumbai. They are the good singers, और Okay. कॉलेज फ्रेंड्स है सब लोग.
मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन है और सब कॉलेज फ्रेंड्स है, और उन्होंने कराओके म्यूज़िक का सिस्टम ले लिया है. दे गो टू ऑल सीनियर सिटीजन्स के ओल्ड एज होम में जाते हैं एंड दे स्पेंड 1 or 2 hours बाय Amazing. सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स. और ओह. सारे देखा मैंने वीडियो, सब खड़े होकर डांस कर रहे हैं, तो उनका भी अच्छा टाइम, दे आर ऑल्सो गिविंग. और वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं ओल्ड एज होम में जिनको लोनलीनेस लगता है, उनको अपने टाइम के पुराने गाने याद से वो भी खुश हो And जाते they हैं. are very happy. Yes, and they will always come back. They sleep well with a lot of So good thoughts. it's a activity for retirement wisdom of India. How is that it is affecting the relationships in today's generations, or any kind of this thing will affect the retirement life? I've seen a lot of people, they are not happy because their kids are not taking care. They are not happy because they gave so much of work, and now there's a gap between their kids and their father, because they are not talking, because they didn't spend the time when the Yes. childhood was there, and so that gap was maintained. So will all these things affect on well-being after retirement? ऑफ कोर्स यस. Yeah. आज जैसे एक एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल है. उनका बेटा है, उनके 2 बेटे हैं, बच्चे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, खुद का बेटा है, बहू है, टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ द पर्सन. उन्होंने ऐसा सोचा, वर्क इज़ अ वर्शिप. Absolutely. पूरी लाइफ उन्होंने जॉब किया, खुद इंजीनियर थे. आई डोंट वांट टू गिव अ नेम बट आई Yeah. थिंक सो, अगर जो भी ये सुनेंगे वो समझ जाएंगे मैं किसकी Mhm. बात कर रही हूँ. पूरी लाइफ उन्होंने काम को समर्पित किया एंड ही रिटायर्ड एट द एज ऑफ 70. Oh. बहुत लेट रिटायर्ड हुए क्योंकि काम ही उनके लिए था. एंड फिजिकली आज की डेट में भी ही इज़ फिट, बिकॉज कभी मैदे को हाथ नहीं लगाया, बाहर का खाना नहीं, पूरी लाइफस्टाइल वैसे जी रहे, योगा करना, ये वो. फिजिकली ही इज़ वेरी फिट, बट आज की डेट में ही इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया एंड अल्जाइमर्स. Oh. भूल रहे हैं, उसको ऐसा लग रहा है कोई मारने आ रहा है, कोई ये करने आ रहा है, एंड ही हैज़ अ करोर्स ऑफ रुपीज़ इन हिज अकाउंट. आज वो पैसे का क्या फ़ायदा जब भी आप मेंटली साउंड नहीं हो, आपके फैमिली के साथ उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी है बट फिर भी. सो द Nobody's माइंड, there. Yeah. हाँ, माइंड एंड इमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई Yes. शेयर वन एग्जाम्पल ऑफ Yeah. गिरीश भाई. व्हेन आई वाज इन ICICI, मैंने उनको बोला कि गिरीश भाई यार बिजनेस नहीं हो रहा है. तो गिरीश भाई मुझे बोले क्यों नहीं हो रहा है. मैं सर कुछ क्या मालूम है. कितना टाइम ऑफिस जाती है. मैं बोला मैं जाती हूँ ऑफिस में. क्यों जाती है ऑफिस. सर ऑफिस तो जाओ ना. क्यों, तेरे को वो कंप्यूटर, तेरा वो लैपटॉप तेरे को पॉलिसी देने वाला है, तो क्यों उसके सामने बैठती है. वो तुझे कुछ नहीं देने वाला. गो आउटसाइड, गो स्पेंड विथ योर चिल्ड्रन, गो विथ योर हस्बैंड, सोशल कर, जितना बाहर जाएगी, PTA मीटिंग कर, एनुअल डे में जा, सब कर. क्यों, क्योंकि Network वहां बढ़ाओ. से तुझे बिजनेस मिलेगा. Network वो लैपटॉप तेरे को बिजनेस नहीं देने वाला है. Absolutely. ये मुझे बरोबर याद है. नहीं, मैं गिरीश भाई. मेरा पूरा एंटायर लाइफ जिन जिन कंपनियों में मैंने काम किया, यू हार्डली सी मी द ऑफिस. Absolutely. अच्छा, अगर उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया है तो कोई स्पीच देना है या कुछ देना है, तो मैं कभी नहीं जाता. मैं ऑफिस के नीचे मेरा काम है, कोई आके मेरे को हेल्प कर देता है. सो एक साल होता है मैं ऑफिस नहीं जाता. Correct. तो मैंने पूरा मेरा ICICI बजाज जितनी कंपनियों में काम किया, मैं ऑफिस जाना बहुत कम पसंद करता हूँ. Absolutely. आप मुझे ऑफिस में कभी देखोगे नहीं. अगर मैं गया तो ट्रेनिंग रूम में हूँ, कॉन्फ्रेंस रूम में हूँ, मेरा डेस्क मैंने नहीं देखा. इवन इन iPro फर्स्ट माई 6-7 ईयर मैंने वो, मेरे को जो कंप्यूटर अलॉट करते थे मैंने लिया ही नहीं. मैंने बोला मुझे क्या करना है उससे. Absolutely. मेरा काम फील्ड पे है. आई वॉन्ट टू मीट पीपल. Yeah, absolutely. That's why today he is having a wonderful Yeah, network. return, yes, Yes. yes. And coming back to sleep, what Ayurveda teaches, and what is that your take on sleep as one of से the स्लीप का है, और बहुत सारे लोग आज इंसोमिया वगैरह सफ़र करते हैं. द मेन रीज़न इज स्ट्रेस. ठीक है, मन शांत नहीं है तो नींद नहीं आने वाली है. तो आपको मन के लिए, मन को शांत करने के लिए मेडिटेशंस हैं, आप करते हो, या प्राणायाम करो. इवन पंचकर्म ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में. और एक सिंपल अगर मैं बोलूँ, फॉर ऑल सीनियर सिटीजन्स और ऑल एल्डरली पीपल, उनके लिए ना ब्राह्मी घृत आता है. क्योंकि जैसे कि घी है वो, और उसको नोज नाक में उसके ड्रॉप्स डालो रात को Okay. सोते समय. हाँ. हाँ. और पंचकव्य घृत है, उसके आप ड्रॉप डालो, तो उनसे उनकी स्लीप अच्छी होगी. प्लस वो जो भूल जाते हैं कुछ हमें, जो थोड़ी मेमोरी लॉस होती है, उसमें भी उनको फ़ायदा होगा. okay? तो ये थोड़े से छोटे से वो एकदम फ्रेंडली है. ऐसा कोई वो दवाई या ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ अ काइंड ऑफ, वी कैन से इट्स अ होम रेमेडी ओनली. बट वो सब चीज़ें, इवन रात को अगर आपने बादाम वाला, केसर वाला और नटमग, अपना जायफल जो बोलते हैं वाला दूध गर्म पी लिया, तो भी आपको नींद अच्छी आ सकती है. और यस, जैसा गिरीश भाई ने बोला, स्क्रीन दूर रखो,
मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग करंटली ऑल्सो कि स्क्रीन जितना हो सके बेडरूम में लाओ ही नहीं, बेडरूम के अंदर ही फ़ोन नहीं जाना चाहिए, तो यू विल गेट अ गुड स्लीप. So you've been a financial planner, Rachna ji, and most of your time recently you started with this products and routes. Uh, what is your takeaway on retirement? Like one as a financial planner and one as a wellness expert, and also what to eat, what to eat. You told us, but if you have to mix and put both together, which are very important. Yesterday we spoke about importance of health insurance. Now there are two ways of health insurance. One is if I use a health insurance, then I am not in a right frame of retirement life. Life. If I don't use it, then that is what everybody wants. Wants. Not to use a health insurance, your message and with a financial planning gives a lot of message to the audience. So I want you to take few examples and of a 25 years old or a 45 years old, what they need to work both on retirement financial planning and also on the wellness as a product. देखो, हम बोलते हैं कि जो यंग बच्चे हैं ना, उनको हमारे गुजराती में बोलते हैं चढ़ता लोईना छोकरा, मतलब उनका खून बढ़ रहा है, अभी उनका वो Yeah. ग्रो हो रहे हैं, राइट. तो दैट इज़ द राइट एज, हमें लगता है तभी हमें कुछ नहीं होगा, और हम वो राइट एज है हमें अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने के लिए. हम ऐसा सोचते हैं मैं 20-25 का हूँ, अभी तो मुझे कुछ नहीं होगा. यस ऑफ कोर्स तुझे कुछ नहीं होगा. और रिटायरमेंट हम कितना भी बात करें, तन का सुख, मन का सुख, आत्मा का सुख, बट अगर पैसा नहीं है तो ये सारे सुख नहीं काम करते हैं. What is that your takeaway on this session with Archana ji's expertise in both financial planning? You have seen her closely, and also she also speaks now about well-being and the products which she is contributing to society. Very Ayurvedic, going back to roots, and also what is that you want to say to audience that how is that both retirement and well-being are interlinked? So in our all earlier episode, right, we talk about the taxation, NRI and this कौन से vehicle use करने चाहिए ने, health में क्या करना चाहिए, right? This is very different, right? And this is also most important. Everything is equally important, right? So wellness, the food habit, Yes, she spoke right? about yes. So someone, even he retire or not retire, right? Every human have to follow the food habits, right? Then the daily activity, and the most important, make people happy. Absolutely. If you're doing something for in a day to make someone happy, you happy. You will be It's a very simple. Yes. I don't think कि उसमें किसी को कोई बुक पढ़ना है, कोई स्पिरिचुअल बनना है, वो बनना इतना जरूरी नहीं है, राइट? वो अपनी लाइफ में सुबह से वो सोचेगा कि आज मैं कितने लोगों को खुश कर सकता हूँ, तो दैट मेक यू हैप्पी रिटायरमेंट ऑल्सो. एंड अगर आपका यंग एज से भी अगर ये हैबिट बन गया, ये डेली हैबिट बनाना पड़ेगा. सो समवन हैव टू ट्राई, उसको नोट डाउन करना पड़ेगा कहाँ कहाँ मैं किस चीज में करेक्ट करना है. सो सारे एपिसोड इंपॉर्टेंट हैं. Absolutely. हर एपिसोड में देयर इज अ मैसेज. Correct. अब कोई आदमी उसको सुने, बार बार सुने, ऐसा नहीं कि एक बार एपिसोड सुनने से होगा. बार बार सुने, नोट करे कि मुझे कहाँ कहाँ करेक्शन करना है. एंड इफ इट्स हेल्प देम, तो दैट्स आवर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, राइट? And government should think on the pension, retirement and happiness ministry also. Yeah, right? I was telling you, Dubai government has introduced a So, Ministry because of Happiness. the Yes. people believe in the government ecosystem, right? Yeah. So वो भी influence कर सकते हैं लोगों को. ये तो हमारा एक small efforts हैं, but we try to justify the subject. Our right? Prime Minister has even admitted. Yes. He that make a screen yoga famous worldwide, right? And also he was talking about I am also using a lot of screen. Yeah. Now government may get some kind of a law that you have to reduce seeing the screen. I've seen it. I've read it somewhere. So there, everybody is recognizing a well-being and being happy is an important aspect of life which is missing. So you can blame it on retirement stress. wisdom of India, retire rich and early and happy. It's a main thing. Yes. And everyone in the India, even on the world, they should thought about it Correct. and act. Absolutely. जितना भी कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी. जितना जल्दी और जितना कर सके अपने आप से, So दे हैव टू प्रैक्टिस दिस. तो गिरीश भाई एक सोशल मीडिया का मुद्दा उठाई मैडम ने, तो आपको एक पूछता हूँ. आजकल एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन सोशल मीडिया. नाउ पीपल आर फॉलोइंग सम ऑफ द एडवाइजर्स, they are not even experts. Like I know one influencer who doesn't know about anything about stock market. He reads, he prepares, and then he gives, and there are a lot of followers to him.
So one last message to whom to follow or whom to how do you evaluate that? So it's a simple method, right? It's not complicated. So first, there is three things. First, trust whom you know, और द विंटेज, कितने साल से आप उसको जानते हो, Correct. एक फर्स्ट मैटर करेगा. दूसरा आपको देखना है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, Absolutely. राइट? जानता अकेला या रिलेटिव अकेला, उसका क्वालिफिकेशन क्या है. एंड द थर्ड वन, उसके जितने भी क्लाइंट है उसका टेस्टिमोनियल क्या है. Absolutely. अब ये तीन चीज को चेक किए बिना अगर आप किसी लाइफ गोल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिटायरमेंट प्लानर के पास चले गए तो आई थिंक चांसेस आर हायर टू फॉल इन द ट्रैप, राइट? Yeah. ये जो मैंने आपको बताया ना कि ओल्ड है, पुराना है, हाँ. उसको फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से, जैसे कि गिरीश भाई ने इन्वेस्ट किया, Correct. मैंने वो देख के इन्वेस्ट कर दिया, Blind trust. ब्लाइंड ट्रस्ट, कि भाई वो तो पुराने हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, वो जो करेंगे वो राइट करेंगे. Respect But- his idea. Yeah. बट जब भी फॉल हुआ वो टिके रहे, बट मैंने निकाल दिया. क्यों? क्योंकि उनका रिस्क एपेटाइट अच्छा था, मेरा नहीं था. Correct. मैं उतना लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने लॉस बुक किया. तो आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आप समझो उसकी कंडीशंस क्या है, क्या क्या था, एनालाइज करो एंड देन यू इन्वेस्ट. तो ये जो है ना कि पुराना है गोल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड नहीं, नया है अपडेटेड है नहीं, खुद विद्वान बनो, खुद एनालाइज करो, खुद समझो और फिर इन्वेस्ट करो. Absolutely. So with this, we would like to, and it's been wonderful talking to you because it's gave a personal message to me also that health is wealth. Wealth. Absolutely, and I need to make a lot of changes in myself to be happy after 60 and to give my daughter a very good life, and to my wife to we should roam around, that I should be healthy enough to roam around the world. ऐसा नहीं होना चाहिए रिटायरमेंट में वाइफ अपना सर्विस ही करे, हाँ, ये दवा खाओ वो दवा खाओ, उनका ये काम नहीं, उनको भी हैप्पी रखना है ना. अगर हम हेल्दी नहीं है तो वो उनको कैसे हैप्पी रखेंगे? So with this, I would like to thank you Girish bhai. It has been a wonderful session, and हमारा कोशिश चलते रहेगा कि रिटायरमेंट जब लास्ट माइल तक पहुंचेगा हम करते रहेंगे ऐसा पॉडकास्ट, जब तक हम पीपल जागरूक ना होगा, गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट करे. इट्स अ कांस्टेंट जर्नी. Absolutely. So we will keep doing it. Thank you so much. Thank you. थैंक यू अर्चना, थैंक यू निरंजन.